Hi guys, welcome to my channel. Lately I've been just it's something was coming on my feed and I was just going to this channel Think Big or Think High, some sort of a channel like that where a guy talks about Sabhyata and Sanskriti, and he looks like this macho guy who really gives a lot of things on Sanatan Dharam and how the females should behave and how the guy should behave. He looks he's in his 30s, स्मार्ट लुकिंग बंदा है. एंड ही स्टार्टेड मेंशनिंग रॉबर्ट ग्रीन. सर, लॉज ऑफ पावर, 48 laws of power. You have to understand one thing. I am not, see, I like his presentation. He's very that macho kind ना, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, एमसीपी होता है ना जो आई कैन गेट दैट मेल शॉवनिस्टिक पिक टाइप्स. औरत को दुखाना नहीं चाहिए बट एट द सेम टाइम औरत की ज़ुबान चलती है. सी वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग that in olden days females were sheltered. I'll give you an example of my mother's siblings only. Now all her sisters were except for another sister who was in Bombay, but she went to the village and got married and she had 8 children. I'm just giving, they were all sheltered. They had their mother-in-law who would take care and फिर उनको फील्ड वर्क करना पड़ता था. पेट भारी है, एक छोटा 1 साल का 2 साल का है, पेट में और एक बच्चा है. And the funniest part, let me tell you this, because these women were married like at the age of 14, 15, 16. I think my granny was married at the age of 14 or something. So she had her child at the age of 15 or 16, okay. So my Masi and my grandmother were pregnant at the same time. So my mama and Masi, the younger ones, were born together along with my Masi's elder children. So the cousins and the uncles and aunties are of the same age. Yes, वो ऐसा हो जाता था. Because even the granny will be fertile. She'll be in her 40s when she's the grandmother, and her daughter will be 16 years old, and by the time she's 25 she'll have 4 to 5 children. अभी वो ज़माना तो नहीं रहा ना. यहाँ पे एक बच्चा भी बड़ी मुश्किल से होता है, that too after 30, that too after doing so much of जद्दोजहद, बिकॉज फीमेल्स आर टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस. देयर इज़ नो फ्लो ऑफ फर्टिलिटी. वहाँ पे क्या होता था, पीपल डिडंट यूज़ प्रिकॉशंस. फील्ड वर्क कर लिया, फिर आके अपने पति पत्नी के साथ सो गए, वो संभोग हो गया बच्चा, फिर 9 months वो पेट लेके होता था. और 2 साल का गैप में उनको इतने सारे बच्चे हो जाए टिल दे आर फर्टाइल. ओके, इवन इन देयर 40s. आई थिंक माई फादर्स साइड ग्रैंड delivered her last daughter at the age of 48, while as the I think there's an age, उसका elder brother और उसके बीच में 27 years का difference रहेगा. 27 years का difference. Yes. Can you believe that? And इसलिए मैंने बोला वो इतने ancient है कि मुझे तो आता पता भी नहीं है उनके वाले साइड का. सो ये दिस इज़ अ फैक्ट. ओके, ये मैं बात कर रही हूँ 30s 40s. My grandmom was born in 1916, okay, and she came from a very good, very wealthy background, okay. जब मैं I remember in the 80s when we had gone to my mother's cousin's place, उनके घर इतने बड़े way back then, और वो सिर्फ लड़के, उनके घर में कोई लड़कियाँ नहीं थी. उनके मामा के घर उनके कॉफ़ी एस्टेट्स होते थे. सो दे वर सो वेल टू डू. वाइल एज माई ग्रैनी मैरिड, माई ग्रैंड फादर वॉज लिटरली वेरी पुअर. वो एक थोड़े से छोटा मोटा होटल चलाते थे, और यार वो बर्तन बनाते थे, वो कारीगर थे सीरियसली. तो वहाँ पे वैसा नहीं होता था कि तुम रिच हो तो तुम्हारी शादी अमीर ख़ानदान में हो जाएगी. वो जहाँ पे तुम्हारा नंबर लग गया वहाँ पे लग गया. लग गया. सो माई ग्रैनी वॉज बॉर्न इन 1916, एंड वो इतनी गोरी रहती थी, लाइक माई मॉम यूज्ड टू बी लाइक लिटरली लाइक अ ट्यूब लाइट, एंड देयर इज़ अनदर सिस्टर हु इज़ लाइक अ ट्यूब लाइट. सो 2 of my mother and my another Masi, the second Masi, are like tube lights. The rest of them are like dark brown, काले कुछ सांवले से है. मे बी दे हैव गॉन ऑन माई grandfather. So my grandfather was very tall, 6 feet, okay. So आई कैन से जेनेटिक्स ऑल्सो. तो ये जो होते थे ना, जो मेरी ग्रैनी, शी वॉज फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, वेरी वेल्दी बैकग्राउंड, बट उसको वो बेनिफिट्स कहाँ मिले, बिकॉज शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 14, 15.
देन शी वॉज मिडल ऑफ नो वेयर, फिर ये 8 बच्चे। और यही एंड माई मदर यूज टू से कि हम लोग सब वो जो राशन पानी उसके ससुराल से लेके आते थे लाइक इन ऑल द फ्रूट्स एंड ऑल द अदर थिंग्स, क्रॉप्स एंड ऑल दैट। क्योंकि वहाँ पे क्या ज़मींदारी सिस्टम रहती थी, इन द सेंस वो खेत तुम्हारे नहीं होते थे, यू हैड टू गिव टू द ज़मींदार। ऐसे मूडो मुंटा थी ना, यू हैव टू 20 kgs ऑफ राइस और 25 kgs ऑफ राइस ऐसे ऐसे तुम बना के एक, हाँ वो एक ही टन वो बनता था, वो मूडो बोलते थे। तो यू हैव टू कीप 5 or 6 ऑफ देम टू गिव इट टू द ज़मींदार, ओके। और फिर तुम्हारे पास कुछ बचता है तो बचता है। फिर बाद में लॉ आ गया था जो भी वो एग्रीकल्चर लैंड पे काम करते हैं वो उनका ही बनता है। सो वहाँ पे वो वाला सिस्टम रहता था। तो आई एंड मेरी जो ग्रैनी थी ना, शी वॉज वेरी क्लेवर विद। मेरी मम्मी हमेशा मेरी ग्रैनी की तारीफ़ करती रहती है कि वो उसने किस तरह से हैंडल किया, क्या करती थी, क्या था वो। कभी मैंने कभी नहीं सुना कि ट्रॉमा है या कुछ भी, तो भी सो बेसिकली दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो काफ़ी वेल्दी थी मेरी ग्रैनी के, मेरी मम्मी के ग्रैनी जो थी उसका जो मायका था, दे आर वेरी वेरी वेल टू डू। सो मच सो कि उनके जो भाई थे उस ज़माने में इन द 40s एंड द 50s वो शिकार करने जाते थे, उनके पास राइफ़ल थी, आई थिंक उनके पास जीप भी थी। एंड यहाँ पे ये उनकी बहन इतनी गरीब। सो ऐसे ऐसे एकदम ड्यूअल ये चीज़ रहती थी, यू नो, वो इतने हाई फाई रहते थे। एंड माई मॉम यूज्ड टू से कि वो हंट करके टाइगर ये वो उन लोग उसका मीट विद दिस हंटर्स ईट देयर मीट ना, रेनडियर ये वो बोलती थी कि ये सब मैंने बचपन में देखा है, बट नॉट फ्रॉम हर मदर फादर्स साइड। बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि पुराने ज़माने में चीज़ें डिफरेंट थी। नाउ द फीमेल हैज़ टू नॉट ओनली गेट उसके ऊपर पेरेंट्स बहुत इन्वेस्ट करते हैं कि शादी या बच्चे पैदा नहीं। यू नो व्हाट दिस मैन सेड, दिस आई कांट रिमेंबर हिज नेम, ही सेड कि एक औरत इतनी खूबसूरत बनती, इतना घमंड नहीं करना चाहिए, तुम सिर्फ एक बिस्तर की रानी हो। अगर एक अमीर आदमी तुमसे शादी करता है तुम वही, ताकि वो अपना बीच तुम्हारे कोक में लिटरली यूज़ दीज वर्ड्स। मुझे हंसी आ रही थी, मैंने बोला कहाँ गई वो सारी औरतें, सारी इनका फ़ैन बनी सिंह। अगर कोई लड़कियाँ तुम्हारी इतनी फ़ैन है मतलब तुम अच्छे हो, तुम अच्छे कैरेक्टर के हो। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हम इनके साथ बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। लेट देम बी द मैचो गाइस, लेट देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। वो मिक्टो वाले, वो इंसेल वाले टाइप के, ये क्या है ना, इनकी डेटिंग लाइफ भी होती है। सी पहले में फर्टिलिटी वॉज फ्री फ्लो और फीमेल यूज टू हैव पीरियड्स, उसको बच्चे होते थे। अभी young ones don't even have periods, because the guy also uses condom, the female uses pills, फिर पता नहीं if they are married they use property। वो काफ़ी सारे अपने फर्टिलिटी को दबा के रखते हैं। इवन द गाय लाइक नो, आई विल हैव नेचुरल सेक्स, आई विल गेट इन एंड आई विल कम आउट। सॉरी टू से दैट, बट यू नो देर इज़ एवरी टाइम पीपल आर वंडरिंग कि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, प्रेगा न्यूज़, फिर वो आके चेक करेंगे ऐसा तो नहीं, ड्रंकन सेक्स कर रहे थे वहाँ पे, ऐसा नहीं। इट्स अ कमिटेड, वेदर यू लाइक योर हस्बैंड और नॉट, वेदर इज़ अगली रिच वॉट एवर, तुम निभाते हो, तुम निभाते थे। अब मेरी आंटीज़ की मेरी जो मासियों की शादी हुई है और या मेरे मामा लोगों की जस्ट रैंडमली शादी हुई है, अरेंज्ड मैरिज, सीरियसली। फिर उन्होंने निभाया, जो जैसा मिला वैसे, वो जैसा पति पीट रहा है ठीक है, नहीं पीट रहा है अच्छा है, तुम्हारी किस्मत। फिर तुम्हारे इन लॉज है वो दूसरा एक अनदर हेडेक, फिर सबके लिए खाना बनाना है, फिर वो कैटल शेड को भी देखना है। सो द लाइफ इज़ जस्ट अबाउट दैट। तो अभी लेडीज़ को काम भी करना है, फिर शादी भी, रिलेशनशिप का भी वो ठेका ले रखा है कि बराबर जा रहा है कि नहीं। फिर वी हैव टू बी द बेस्ट मॉम, तो एक ही बच्चा चाहिए, आई गिव द बेस्ट टू द ओनली किड। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वाई डू यू वॉन्ट टू गिव बेस्ट टू द ओनली किड, वाई कांट वी हैव 2 kids? उनको दोनों को बराबर से रखे। उनके लग्जरी गुड्स को तुम इतना खर्चा करते हो, उसमें तो 4 बच्चे पल जाते हैं। तो ये जो चोचलेपना है ना, नहीं वी डोंट वांट किड्स, वो एक एक्सपेंस रहता है, हेडेक रहता है, अननेसेसरी अनवांटेड। मैंने बोला बच्चे पालने हैं वो तो एक्सपेंस नंदलेस रहते हैं,
इट्स वॉट यू ऑफर देम. इफ़ यू आर गिविंग देम ऑल द टाइम डिज़ाइनर क्लोथ्स और बाहर का खाना, उसको ऊपर चढ़ा के लाखों का फीस सिर्फ उनके स्कूल में भरते हो, आई थिंक इट्स स्टूपिडिटी. सीरियसली यार, रियली आई एम टेलिंग यू. मैं जब देखती हूँ, मैंने बोला यार दिस इज़ एब्सोल्यूट. अब केजी में 1 लाख रुपया, इजंट इट फनी? नहीं नहीं, बस ब्रांडेड ही चाहिए, ब्रांडेड ही चाहिए. मैंने बोला एज लॉन्ग एज द पर्सन कैन रीड एंड राइट, आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग, एज लॉन्ग एज यू कैन, ब्रांड के पीछे भागते रहेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि म्यूनसिपाल्टी में डाल दो, बट काफ़ी अच्छे स्कूल्स भी रहते हैं, बट लोगों को ना एक स्कूल में से निकाल के दूसरे स्कूल में डाल देंगे. फिर तुम स्पोर्ट्स भी करो, म्यूज़िक भी करो, डांस क्लास भी करो, स्विमिंग भी करो, बैडमिंटन भी करो, क्रिकेट भी खेलो, फुटबॉल भी खेलो, पेंटिंग भी करो, गिटार भी सीखो, सितार भी सीखो, भरतनाट्यम सीखो, फिर फिल्मी बॉलीवुड डांस भी सीखो. सब कुछ सीखना है बच्चों को. और वो कहीं के मास्टर ऑफ नन, वो ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बन जाते हैं. बच्चे इतने स्टूपिड बन जाते हैं इन देयर हेड्स, स्पेशली द ओनली चिल्ड्रन ना. वो तुम देखो, दे आर लाइक नम इन देयर हेड्स, दे आर लाइक स्टैचूज. तो पीपल आर अफ्रेड टू हैव चिल्ड्रन बिकॉज दे थिंक इट्स एन एक्सपेंस. वो डर जाते हैं कि भाई अभी इनका खाना पीना, फिर इनका कपड़े लत्ते, फिर इनको घुमाना फिराना, फिर इनकी पढ़ाई, फिर इनका और क्या मेडिकल का खर्चा. हम वही सोचते. पहले के ज़माने में ये नहीं सोचते थे, 10 बच्चे तो 10 भेंडी देखा जाएगा. फिर वो पल जाते थे. सीरियसली, द एल्डर वंस यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द यंगर वंस. यस यस, इट्स अ फैक्ट. That's what my mother has been. मेरी मम्मी had the younger ones. I think she had, yeah, उसने भी किया है बेबी सिटिंग. ये सारे के सारे फिर ये ना गृहस्थनियाँ बन जाती है एट द एज ऑफ 12, 13, 14. दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ किड्स, देन दे आर हेल्पिंग इन द किचन. फिर वो इतना हार्ड वर्क, वेल से पानी लेके आना, वेसल्स वॉश करना है, कपड़े धोने हैं, घर साफ़ करना है, एनिमल्स को खाना देना है, फिर यहाँ से वहाँ स्कूल भागना है, स्कूल से आते वक्त फिर फील्ड में काम करना है. बहुत मेहनत करती थी औरतें. तो उनके हाथ पैर भी तगड़े रहते थे और वो थक के चूर हो जाती, सो जाती थी. सीरियसली. और सब नेचुरल खाना खाते थे ना हम लोग. थोड़ा सा भी मिला, कभी मिला नहीं मिला. रेनी सीजन में बहुत ही प्रॉब्लम्स होते थे खाने पीने के. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. तो आर लाइफ इज़ मच बेटर. बट हम लोग ना एक हल्के फुल्के वॉल फ्लावर बन गए हैं. हमारे अंदर कोई हिम्मत ही नहीं है. बस टूट ही जाते हैं हम लोग, फूट जाते हैं हम लोग. कुछ है ही नहीं हमारे अंदर.